Welcome back to our Basic of Organic Chemistry video series. In our previous video, we learned about the basic of organic chemistry, what is the valency of chemistry, then what do you mean by catenation, everything we have studied in the previous video. Now let's move on to the next topic, that is structural representation of organic compounds, and further we are going to study very important topic, that is how to write down the structural representation. Next thing is we will be studying about cyclic compounds, then three-dimensional representation of organic molecule, coming to classification of organic compounds. Then the next topic, which is a very, very important topic of the chapter, which is functional group. Okay, so all these topics, students, are very, very important, and it will help you to understand all the basic concepts of organic chemistry. And I'm sure by the end of this video, you'll have a clear understanding of the naming of the functional group. So let's get started with the topic. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि how a structural representation of organic compound is written. Now the very first one is Lewis formula. तो सबसे पहले तो 4 different forms है. पहला है Lewis formula. The second one is structural formula. The third one is condensed formula. And the last one is bond-line formula. Let us have a look on each and every formula step by step with different examples. तो सबसे पहले है मीथेन. मीथेन का हमें सबको पता है कि मीथेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? It is one carbon. And then in order to write down the Lewis structure, you need to simply put carbon, and then we know that carbon, it is surrounded by how many electrons? It is surrounded by 4 electrons because of 3 and then 4. ठीक है? And then it is bonded to hydrogen. So these are the 4 electrons of 4 hydrogen. So whenever you write down dot structure, so each dot represents 1 electron. हमेशा याद रखो. Next thing is formula for structural formula. तो जब भी आप structural formula लिखते हो, तो instead of 2 electrons, instead of this dot, you are going to put 1 bond. So this is called as a structural formula for methane. कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में आपको लिखना है सब, विदाउट पुटिंग एनी बॉन्ड. सो यहाँ पे होगा CH4. सो हाउ मेनी कार्बन? 1 कार्बन. एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4. बॉन्ड लाइन मीथेन का हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी आपको बॉन्ड लाइन लिखना है तो 2 कार्बन होना कंपलसरी है. एंड बॉन्ड लाइन इज नथिंग बट इट इज द zigzag representation. Coming to ethane, so similar way ethane you can write down. ethane में how many कार्बन आप प्रेजेंट बच्चों? It is 2 कार्बन. तो हमने यहाँ पे 2 कार्बन लिख दिया है. 2 कार्बन के बाद में 2 कार्बन के बाद आपको क्या करना है? आपको simply you need to balance it with hydrogen. So this is how you are going to balance it with hydrogen. And then next thing is structural representation में instead of electrons you are going to put bond. So this is the structure for ethane, the structural representation. Then comes the condensed formula. तो condensed formula के लिए आपको क्या करना है? ये CH3, the next one is CH3. Now many students confuse होते हैं कि मैम हम C2H6 भी लिख सकते हैं क्या? C2H6 क्या होता है बच्चों? इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, आई रिपीट, इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला. तो जब भी आपको कंडेंस फॉर्म या स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखना है तो आपको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना होता है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज प्रोपेन. कमिंग टू प्रोपेन, अगेन द वर्ड प्रोप. ओके, प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन. तो सबसे पहले आपको 3 कार्बन डालना है, एंड देन यू आर गोइंग टू पुट दी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम वे. ठीक है, 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके 1 बॉन्ड इट विल फॉर्म. सेम वे कार्बन, इट विल बी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है फॉर प्रोपेन. कमिंग टू द कंडेंस्ड फॉर्मूला फॉर प्रोपेन, द फर्स्ट कार्बन इट हैज 3 hydrogen, so you are going to write it down as CH3. The second carbon it has a CH2, so you are going to write it down as CH2. The third carbon it has 1, 2 and 3 hydrogen, so you are going to put it as a CH3. तो ये हो गया condensed formula for propane. Coming to the bond line formula, bond line जैसे कि मैंने कहा, आपको bond line के लिए zigzag structure आपको लिखना है. तो जहां पे भी intersecting points, मतलब ये एक, ये 2 और ये है आपका थर्ड, वहां पे क्या होगा? देयर विल बी व्हाट? प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन एटम. सो दिस इज 1 कार्बन, कार्बन एंड देन कार्बन. तो यहाँ पे आपको कोई एटम लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली यू आर गोइंग टू शो दी बॉन्ड्स इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. Same way formula coming to butane, and then the last one will be what? It will be the bond line formula. So bond line, it is very simple, 1, 2, 3 and then 4. तो zigzag आपको लिखते जाना है, okay, depending upon the number of carbon.
कमिंग टू नाउ इथीन। इथीन का क्या मतलब होता है बच्चों? ईथ का मतलब दो कार्बन होगा एंड ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड। तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कब होता है? जब ईच कार्बन इट शेयर्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दूसरे कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये दोनों मिलके वन बॉन्ड एंड देन वन मोर बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म। एंड बाकी जितनी भी है दैट विल बी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। सो यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज इन दिस वे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सबसे पहले एंड देन बाकी दो बॉन्ड हाइड्रोजन को अटैच रहेंगे। ठीक है, कमिंग टू कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में आपको क्या करना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? Coming to now propane, same way Lewis dot structure, then structural formula, and then the condensed formula. द बॉन्ड लाइन आपको सेम इसी प्रोपेन की तरह ही आपको लिखना है। तो प्रोपेन में आपने जैसे लिखा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप और एक बॉन्ड शो करोगे। ठीक है, सेम वे प्रोपाइन में आपको क्या करना है बच्चों? 1 कार्बन 2 कार्बन थर्ड कार्बन तरीके से 3 बॉन्ड दिखाओगे। सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द carbon or hydrocarbon compounds, or you can represent any organic compounds using Lewis formula, structural formula, condensed formula, and bond line formula. Let us proceed ahead with the next type, that is a cyclo compounds or cyclic compounds. Cyclic compounds क्या होता है बच्चों? Cyclic compounds are ring शेप स्ट्रक्चर्स और क्लोज्ड कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो कि रिंग की तरह है या क्लोज्ड कंपाउंड्स है उसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। एंड जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड्स लिखते हो तो उसका नेमिंग क्या होता है बच्चों? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज साइक्लो। तो साइक्लो एंड देन प्रोपेन। तो सपोज आपको साइक्लो प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखना है, तो साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लिक। एंड प्रोपेन क्या होता है बच्चों? 3 कार्बन। सो ये हो गया 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन एंड दिस इज 3 कार्बन। तो ये टोटल 3 कार्बन, दे आर व्हाट? दे आर प्रेजेंट इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसे हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। सेम वे अगर क्वेश्चन आता है साइक्लोब्यूटेन, सो 4 आपको कार्बन रिंग में लिखना है। ठीक है, इट शुड बी साइक्लिक। साइक्लोपेंटेन देन साइक्लोहेक्सेन। कमिंग टू द स्ट्रक्चर नाउ, यहाँ पे नेमिंग क्या है? इट इज मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि साइक्लोब्यूटेन कैसे लिखना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये 1 कार्बन है। दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। एंड हमेशा याद रखो कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। कौन से कार्बन पे अटैच्ड है मेंशन नहीं किया है। अगर कोई मेंशन नहीं किया है पोजीशन, तो कौन सा पोजीशन होता है? इट इज द फर्स्ट पोजीशन। सो फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कौन सा ग्रुप है बच्चों? इट इज मिथाइल ग्रुप। सो वी कॉल दिस एज मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, कमिंग टू साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन में भी सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो 1 2 3 4, हमने ये 4 कार्बन तो लिख दिया है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। देन ब्यूटीन बोला है। ठीक है, तो ब्यूटीन में आपको क्या याद रखना है? ब्यूटीन में अगेन पोजीशन नहीं दिया गया है, तो आपको कंसिडर क्या करना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? फर्स्ट है। एंड फर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कौन से 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड में लोअर हम लोग कंसिडर करते हैं 1। तो यहाँ पे आपका पोजीशन क्या होता है डबल बॉन्ड का? इट विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड है, दिस इज थर्ड एंड देन दिस इज द फोर्थ वन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटीन। हमेशा याद रखो जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखते हो तो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फाइन, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इसे 1 लिया है तो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, नो प्रॉब्लम। साइक्लिक में यही एक एडवांटेज है कि आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट वन, साइक्लोब्यूटाइन। सो साइक्लोब्यूटाइन में क्या होगा बच्चों? अगेन द सेम थिंग, 4 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन। एंड कौन से 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा? ऑब्वियसली इट विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एंड देन दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू naming and representing the cyclic compounds. Coming to the next topic, 3 dimensional representation of organic molecules. अभी इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो 3 डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, हम उसी रिप्रेजेंटेशन को पेपर पे कैसे लिख सकते हो? सो देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, सर्टेन कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो सॉलिड वेज होता है, इस तरीके से जहां पे भी आप लिखते हो सॉलिड वेज, ओके, दिस वन, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब
a bond projecting from the plane of the paper towards the observer. तो अभी स्पेस में जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसे अगर मुझे पेपर में लिखना है, सॉलिड वेज जहां पे भी आप ड्रॉप करोगे, इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, बॉन्ड आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, अगर ये डैश्ड वेज है, डैश्ड वेज, ठीक है, डैश वेज, यहाँ पे इट विल बी व्हाट, इट विल बी द बॉन्ड विल बी प्रोजेक्टिंग below, away from the observer. Okay, it will be projecting away from the observer. That means this bond they are talking कि ये observer से दूर जा रहा है, this is towards the observer. Then बाकी के जो दो लाइन है, जो नॉर्मल बॉन्ड वाले लाइन है, this and this, so these are what, these are projecting, that means the bond is what, it is lying in the plane of the पेपर। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन या ये चार टाइप के बॉन्ड्स आप यूज कर सकते हो टू अ पेपर। सो सबसे पहले तो क्या होता है, सॉलिड वेज का मतलब इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। डैश्ड वेज क्या होता है, इट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एंड ये एच एंड एच मतलब ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स है, नॉर्मल बॉन्ड्स क्या होते हैं, दे आर इन द प्लेन। ओके, दे आर व्हाट, दे आर प्रोजेक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ना हमेशा याद रखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इसे क्लासिफाई भी करना बहुत जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट इनटू टू मेन ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज ओपन चेन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज असाइक्लिक कंपाउंड्स। सो वर्ड से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि चेन कैसा होगा, इट विल बी ओपन चेन। द सेकेंड वन इज साइक्लिक कंपाउंड, जो कि अभी हमने देखा है कि साइक्लिक कंपाउंड को लिखते कैसे हैं एंड उसका नेमिंग क्या होता है। ठीक है, तो ओपन चेन में भी हमेशा याद रखो बच्चों, ओपन चेन में या तो एक स्ट्रेट चेन होगा, या तो एक स्ट्रेट चेन है एंड उसके ऊपर ब्रांचिंग है। ठीक है, तो ब्रांचिंग किसी भी तरीके से, एक से ज्यादा भी ब्रांचिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर देखूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेट चेन है, इस तरीके से है। ठीक है, द सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, एक चेन है, द सेकेंड स्ट्रक्चर इट इज समथिंग लाइक दिस, एक चेन है एंड इसके ऊपर यहाँ पे आपको ब्रांचिंग नजर आएगा। ठीक है, नेमिंग आप बाद में हम लोग सीखेंगे कि इसका नेमिंग कैसे करना है इन डिटेल विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर का नेमिंग क्या है, इट इज ब्यूटेन, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर का नेमिंग है आइसोब्यूटेन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स। सो साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन द सेम थिंग जैसे अभी हमने स्टडी किया है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तीन कार्बन विच आर प्रेजेंट इन अ रिंग। ओके, कमिंग टू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लो कंपाउंड्स भी बच्चों, साइक्लो कंपाउंड्स इट इज व्हाट, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, द वर्ड इटसेल्फ सेज होमो, होमो इज व्हाट, समथिंग सिमिलर। तो क्या सेम होने वाला है यहाँ पे बच्चों, हमेशा याद रखो, अगर चेन में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ओके, आई मीन टू से ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम। सो अगर चेन में ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, देन वी कॉल इट एज व्हाट, होमोसाइक्लिक, क्योंकि एक ही टाइप का एलिमेंट, एक ही टाइप का एलिमेंट यहाँ पे कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन के साथ में कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट होगा एंड वन मोर ग्रुप विल बी प्रेजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली कार्बन, यहाँ पे कार्बन एंड सम अदर ग्रुप विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। कमिंग टू होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है बच्चों, एलिसाइक्लिक में सिंपली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एरोमेटिक में क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है बट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक, इसका मीनिंग बेंजीन नहीं है बच्चों, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे ही आपको सिक्स कार्बन वाला चेन दिखता है तुरंत बेंजीन नहीं लिखना है। बेंजीन के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, इट विल बी साइक्लो हेक्स क्यू, क्योंकि सिक्स कार्बन है। ठीक है, 1 3 4 5 एंड 6, एंड ANEQ क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है, जब भी आप मीनिंग करते हो तो पार्ट्स में ब्रेक करो एंड देन यू ट्राई टू आंसर, तब जाके आपको सही आंसर मिलेगा। कमिंग टू बेंजीन, बेंजीन तो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सिक्स कार्बन विच इज प्रेजेंट इन अ रिंग एंड इट कंटेन्स व्हाट, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है उसमें। ठीक है, एलिसाइक्लिक, नाउ कमिंग टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक में भी फर्स्ट टाइप है एलिसाइक्लिक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हेट्रो का मतलब क्या है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के अलावा और एक एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो अगर एक से ज्यादा अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है इन अ रिंग, वी कॉल इट एज हेट्रोसाइक्लिक। एंड ये एलिसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि रिंग में कोई भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज
एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगेन हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, सेम वे यहाँ पे कार्बन 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 एंड देन ऑक्सीजन यू हैव, तो दिस इज हेट्रो, व्हाई? बिकॉज कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। एंड एरोमेटिक क्यों? क्योंकि ग्रीन। Clear? So this is everything related to the classification of organic compounds based on the structure. In the next video, we are going to study a very important topic based on the फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपको समझ में आया तो ही आप आगे के स्ट्रक्चर इजीली लिख सकते हो। तो यहीं से आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, उसका नेमिंग क्या है, कैसे आपको नेम करना है, एवरीथिंग यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। So stay tuned to my channel and you can follow my YouTube channel and go through my previous videos uploaded on YouTube playlist. Thank you.